In the name of Allah Almighty, the most merciful and beneficent. Dear student of second years, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing very well. Dear student, in previous class, we were discussing a topic, the remaining topic, that is gender inequality is detrimental to society. And in previous class, I, explained that what the topic is all about. What the topic, what the title conveys, what the title of this essay conveys, that gender inequality is detrimental to society. Then I explained what is gender. Then I told you that what is inequality, what is the unequal state between genders, and then what is detrimental. Detrimental means dangerous to society. And then we discussed in previous class. We discussed that that the life of women in Pakistan is miserable. As I told you that they are leading a very miserable life, and then the essay then told us that that 50% of the population, of the whole population, are comprises of women, and they are this large population of the world population is maltreated. As I told you that the life of women in Pakistan is miserable. And then why life of women in Pakistan is miserable? Because there is not enough educational facilities for women. As we discussed that there are as compared to men, there is only primary school for women in rural areas as compared to men. For men, there is higher middle school, higher school, then higher secondary school. For women, there is only primary school hardly. And then we discussed that there is in Pakistan and most of the undeveloped countries are developing countries, less developed countries, there is not satisfactory health condition for women. ख़वातीन के लिए क्या है, हेल्थ के सिचुएशन भी क्या है, वो भी अच्छे नहीं है, that is not satisfactory, वो भी मुतमईन करने वाली नहीं है. In today's lecture we would be discussing the remaining part of the essay, and the remaining part of the essay is about malnutrition is responsible for poor health in women. Yes, in Pakistan there is another factor, malnutrition is another factor which is responsible for poor health in women. ठीक है, ख़वातीन में यानी बुरे उनकी कमज़ोर हालात का, उनकी कमज़ोर सेहत का, उनकी ख़राब सेहत का जिम्मेदार कौन सी चीज़ है? malnutrition. malnutrition आपको पता है ना, खराब malnutrition कहते हैं यानी आप malnutrition का मतलब है कि आप lack of adequate nourishment. ठीक है, nourishment ऐसी खुराक, ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल जिसे nourishment आपको ना मिले, lack of adequate of nourishment, food for nourishment. So in the next one is Pakistani women are not self-independent, and not self-reliant for financial need. ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द इन रूरल एरियाज, पाकिस्तान के रिमोट एरियाज की तरफ चले जाए, नॉर्दर्न एरियाज की तरफ चले जाए और ट्राइबल एरिया की तरफ अगर हम चले जाए तो देयर पाकिस्तानी वुमेन आर नॉट सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट फॉर फाइनेंशियल नीड. वो सेल्फ रिलायंट नहीं है, दे आर नॉट सेल्फ इंडिपेंडेंट, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट भी नहीं है फॉर देयर फाइनेंशियल नीड. उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो खुद जाके काम नहीं कर सकते. दे आर नॉट अलाउड टू वर्क आउटसाइड, उनको बाहर काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती. इवन दे आर नॉट अलाउड टू गो फॉर स्कूल. ठीक है, स्कूल जाने की, टू गो टू स्कूल, उनको स्कूल जाने की इजाज़त भी नहीं होती. प्रॉपर एजुकेशन उनके लिए नहीं है तो काम कैसे करेंगे? सो दे आर नॉट अलाउड टू गो टू वर्क आउटसाइड, एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तानी वीमेन आर नॉट सेल्फ रिलाइंग, सेल्फ इंडिपेंडेंट, एंड नॉट सेल्फ रिलाइंग फॉर financial need. And for financial need they must rely on the male member of the family. And then they are paid less as compared to men. If luckily अगर कोई खातून जो है जो पढ़ा लिखा हो, जो जाता है अगर इंडस्ट्रीज में चला जाता है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में जाता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अगर चला जाता है तो दे आर पेड लेस वेजेस एज कम्पेयर टू मैन. उनकी सैलरी भी क्या होती है, मर्दों के हवाले से मर्दों की निस्बत कम होती है. दैट इज अगेन ए फैक्टर which is responsible for this inequality, gender inequality, that is detrimental to society. Again, another point is they are maltreated in case of inheritance. Yes, this is again another factor in Pakistani society, that women are maltreated in case of inheritance. जो inheritance उनको मिलता है, जो इस्लाम ने दिया है, जो खुदा बन ताला ने उनको दिया है, जो अल्लाह ने उनको जो हिस्सा दिया है,
जो उनका हिस्सा दिया है उनको इनहेरिटेंस में, वो भी उनको नहीं दिया जाता। अगर कोई खातून अपने यानी घर वालों से, अपने अब्बू से या अपने भाइयों से अपने इनहेरिटेंस की बात करता है तो वो जिंदगी भर के लिए उससे नाता तोड़ते हैं, रिश्ता तोड़ते हैं। दैट इज अगेन दे आर मल ट्रीटेड इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज अगेन इनइक्वालिटी, ये भी इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, द रिमेनिंग पार्ट विल रीड द टेक्स्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टेक्स्ट and open your book at page number 195 second paragraph. Let me read it and I'll explain it to you. Malnutrition is another factor responsible for poor female health in Pakistan and some other developing countries. Yes, malnutrition is again responsible, again is a factor which is responsible for poor health, in Pakistan, in women Pakistan and other developing countries. और दूसरे ममालिक में भी इस तरह. According to the medical expert, more than 60% women in Pakistan have deficiency of vitamin D. According to nutrition expert, there are more than 60% of women in Pakistan they have डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की कमी होती है उनके दरमियान। 60% ऑफ वीमेन जो है वो डिफिशिएंसी का शिकार होते हैं। This situation is quite grave and gloomy. Grave means serious है। कहता है कि ये सिचुएशन जो है which is very serious, ये बहुत ही सीरियस इशू है। and gloomy means sad, ये गमगीन एक सिचुएशन है। ये सिचुएशन क्या है? gloomy भी है और गमगीन भी है। The quality as well as the quantity of food for female and male based on discrimination. कहता है कि यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में क्या किया जाता है मर्द और ख्वातीन के दरमियान। That is on the base of distinction कैसे है? discrimination means distinction, ठीक है। दैट इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन। वो भी क्या होती है? डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे होती है, इम्तियाजी सलूक किया जाता है। यानी क्वालिटी में भी क्वांटिटी में भी उनको, क्वालिटी में भी अच्छी खुराक उनको नहीं मिलती, क्वांटिटी में भी उनको कम खुराक मिलती है। न्यूट्रिशन के हवाले से अगर हम बात करें, the male member of the family are served first with good quality of food while women dine what is left behind on the dining table. कहते हैं कि जो अच्छी खुराक होती है, जो क्वालिटी वाली खुराक होती है, वो सबसे पहले क्या किया जाता है? मेल मेंबर को सर्व किया जाता है। जबकि खवातीन किस चीज को खाते हैं? जो कुछ डाइनिंग टेबल पे दे डाइन मीन ईट। इसका मतलब है कि वो खवातीन क्या खाते हैं? खवातीन वो खाते हैं जो डाइनिंग टेबल पे बचा हुआ होता है, जो बकाया रह जाता है मेल मेंबर से, वो खवातीन खाते हैं। ये ज़्यादातर हमारे माशरे की अक्कासी है यहाँ पे। अब नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ मैं बार बार चला जाता हूँ क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ में यही चीज़ें होती है, और ख़ासकर ट्राइबल एरियाज़ में। शहर में भी शायद होते होंगे, या हमारे यहाँ एक मुआशरा ही ऐसा बना हुआ है कि इसमें क्या होता है? मेल मेंबर आर सर्व फर्स्ट, उनको पहले सर्व किया जाता है, while the remaining food on the dining table dined by the women, ठीक है। वीमेन, खवातीन क्या करते हैं? जो कुछ बकाया रहता है वो खा लेते हैं। It is assumed that women do not need good nutrition and can survive and grow well with low calorie intake. ये तसव्वुर किया जाता है कि खवातीन को अच्छी खुराक की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्या होते हैं? अगर कम कैलोरी भी खाए, कम कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। कम कैलोरी भी खाए, कम खुराक भी खाए, वो क्या कर सकते हैं? वो सर्वाइव कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं? अच्छी तरह वो ग्रो भी कर सकते हैं लो कैलोरी के साथ भी, ठीक है। As a result, women fall a victim of many disease. वे इस तरह के अगर हम उनको न क्वालिटी वाले खुराक दे दें, न क्वांटिटी वाले खुराक दे दें, तो वो क्या होंगे? They will fall victim of various diseases. Fall mean prey, become prey, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे? वो उसका शिकार हो जाएंगे, वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। इसी तरह वो क्या होते हैं? मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। As a matter of fact, हकीकत के तौर पर क्या है? Women need good nutrition food, nutritious food because they have to feed and bring up children. यानी हकीकत में क्या है? असल में उनको अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, उनको अच्छी न्यूट्रिशियस खुराक की ज़रूरत होती है, बिकॉज दे हैव टू फीड एंड ब्रिंग अप चिल्ड्रन, क्योंकि उन्हें इन्हें बच्चों को पालना होता है, बच्चों को फीड भी करना होता है, उनको दूध देना होता है, उनको पालना होता है। But due to the discriminatory attitude of the male member of the family, women are ignored in every walk of life. Due to the discrimination of male member of the family, they are ignored. उनको ignore किया जाता है in every walk of life. जिंदगी के हर शुबे में, जिंदगी के हर फील्ड में, in every field of life, in every walk of life mean in every field of life they are ignored. उनको क्या किया जाता है? Ignore किया जाता है। Ignore mean
उनको नज़रअंदाज किया जाता है। इग्नोर मीन नज़रअंदाज करना, दे आर इग्नोर्ड, नज़रअंदाज किया जाता है, नज़रअंदाज। उनको क्या किया जाता है? हर फील्ड ऑफ लाइफ, एवरी वॉक ऑफ लाइफ, मीन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ दे आर इग्नोर्ड, ठीक है। Such weak and anemic of women produce sick and unnourished next generation. Anemic mean lack of power. Anemic किसे कहा जाता है? Anemic mean lack of power. जिसमें कोई ताकत ना हो, lack of power, lack of color, ठीक है, lack of power और color, जिसमें कोई रंगत ना हो, पावर ना हो, ठीक है, जिसमें कोई यानी कलरफुल ना हो, जिसमें कोई कलर ना हो, रंगत ना हो, ऐसे खवातीन यानी वीक एंड एनेमिक वीमेन, कमज़ोर और इस तरह के खवातीन जो है, कलरलेस खवातीन जो है, लेक ऑफ पावर वाले खवातीन जो है, कमज़ोर खवातीन जो है, प्रोड्यूस सिक एंड अननरिश्ड नेक्स्ट जनरेशन। वो क्या करते हैं? अगली नस्ल जो है उस कमज़ोर नस्ल पैदा करते हैं। आगे की नस्ल जो क्या होती है, उनकी कमज़ोरी की वजह से उनकी जो वीकनेस जो है वो मुंतकिल होती है नेक्स्ट जनरेशन को। तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? यानी कमज़ोर जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। This gender inequality depict a horrible picture of the health condition women in Pakistan. ये inequality जो है, gender inequality जो है, depict a horrible picture, एक खौफनाक पिक्चर जो है, एक dreadful picture जो है, horrible mean dreadful, ठीक है, horrible mean एक खौफनाक पिक्चर को क्या करते हैं? डिपिक्ट करते हैं, हमारे सामने ले आते हैं। इन द कंडीशन ऑफ वीमेन इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में खवातीन के कंडीशन को। This poor health situation also hamper women participation in economic growth of the country. ये poor health जो है, उनकी poor health क्या करता है? Which also hamper them. Hamper mean stop them. Which also hamper mean stop them. वो क्या करता है? Stop them in participating in the economic affair of the country, economic growth of the country. यानी मुल्क की economic growth में participate करने से भी उनको क्या करता है? रोक देता है। जब वो साल हर साल बीमार हो, उनकी पेल रंग हो, कलरलेस हो, एनेमिक हो, तो how can they participate in the economic growth of a country? यानी वो नहीं कर सकते। They will be unable to participate. They will be unable to contribute in the economic growth of a country. This poor health की वजह से। और आगे कहते पाकिस्तानी वुमेन आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलाइंग फॉर देयर फाइनेंशियल नीड। अपनी फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत, अपने फाइनेंशियल नीड के लिए, अपने फाइनेंशियल ज़रूरतों के लिए, माली ज़रूरतों के लिए, दे आर नॉट सेल्फ इंडिपेंडेंट। वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, एंड दे आर नॉट सेल्फ रिलाइंग। वो खुद पे इन्हिसार नहीं कर सकते। सेल्फ रिलाइंग मीन दे आर नॉट सेल्फ रिलाइंग मीन वो अपने आप पे सेल्फ रिलाई भी नहीं कर सकते, सेल्फ इंडिपेंडेंट भी नहीं हो सकते, ठीक है। एंड फॉर देयर फाइनेंशियल नीड दे मस्ट डिपेंड ऑन देयर मेल मेंबर ऑफ देयर फैमिली। वो क्या होता है? फॉर फाइनेंशियल नीड दे मस्ट रिलाई ऑन देयर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। मर्द यानी फैमिली का कोई मर्द मेंबर जो है उस पर डिपेंड करना होता है। दे मस्ट बी डिपेंडेंट, दे मस्ट रिलाई ऑन द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। दिस एस्पेक्ट इज अनदर फैक्टर टू देयर वल्नरेबिलिटी। कहते हैं दिस एस्पेक्ट इज अनदर फैक्टर फॉर देयर वल्नरेबिलिटी। ये क्या है? उनकी माजूरीपन का। वल्नरेबिलिटी मीन माजूरीपन का। बीइंग इंजर्ड यानी इंजर्ड, बीइंग पुअर, ठीक है। वल्नरेबल मीन बीइंग पुअर। वल्नरेबल से कहा जाता है वल्नरेबल मीन बीइंग पुअर। उनकी गुर्बत का बीइंग इंजर्ड भी कहा जाता है। उनकी यानी बीइंग इंजर्ड यानी उनकी माजूरपन का क्या है? ये सिचुएशन क्या है? ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये क्या है? दिस एस्पेक्ट इज अनदर फैक्टर फॉर देयर वल्नरेबिलिटी। उनकी वल्नरेबिलिटी का क्या है? ये अनदर एस्पेक्ट है कि दे आर नॉट सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड दे आर नॉट सेल्फ रिलायंट फॉर देयर फाइनेंशियल नीड। क्या है? उनकी फाइनेंशियल ज़रूरतों के लिए भी वो खुद पर इन्हिसार नहीं कर सकते, वो खुद पर डिपेंड नहीं कर सकते। ये भी उनकी वल्नरेबिलिटी का क्या है? एक फैक्टर है। Due to lack of education, women are not able to get appropriate job. As I told you that they are always ignored in case of education. If they are due to lack of education, because उनके पास lack of education होती है, education नहीं होती है, इसकी वजह से उनको जॉब भी नहीं मिलती। Because of due to lack of education, women are not able to get appropriate job. उनको अच्छी jobs भी नहीं मिलती, काम भी नहीं मिलते। Women are given less job opportunities. यानी उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम मिलते हैं। यानी मान उनका कोटा जो है वो बहुत कम होता है। देयर कोटा इन जॉब इज फार लेस देन द कोटा रिजर्व फॉर मैन। जो मर्दों के लिए जो कोटा मुख्तस किया जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या होता है? इनका कोटा भी बहुत कम होता है। उनके सीट्स जो होते हैं वो भी कम होते हैं एज कम्पेयर टू मैन, यानी मर्दों के हिसाब से।
वुमेन वर्कर इन इंडस्ट्रीज, खवातीन जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, एंड मिल्स और कारखानों में काम करते हैं, आर गिवन लेस वेजेस एज कंपेयर टू द वेजेस पेड टू द मेल वर्कर। यानी मेल वर्कर को जो पेड किया जाता है, मेल वर्कर को जो सैलरी दी जाती है, उसके हिसाब से क्या किया जाता है, खवातीन को बहुत कम सैलरी दी जाती है, उनको यानी दे आर गिवन लेस पेड, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उनको कम वेजेस दिया जाता है, they are given less wages as compared to the wages of man paid, paid to the male worker. Although women workers contribute much to the economy of the country, yet there is no effective security plan to safeguard their rights. अगरचे वो क्या करते हैं, अगरचे वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, मुल्क की इकोनॉमी के लिए they do their level best, वो बेहतरीन काम करते हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए काम बहुत ज़्यादा करते हैं, but there is no effective security plan to safeguard their rights. उनके हुकूक की सेफगार्ड के लिए, उनके हुकूक की हिफाजत के लिए, सेफगार्ड से कहा जाता है, सेफगार्ड मीन प्रोटेक्शन, सेफगार्ड मीन हिफाजत को कहा जाता है, प्रोटेक्शन, ठीक है। उनकी हुकूक की सेफगार्ड के लिए क्या है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई प्लान नहीं है, उनकी हुकूक की सेफगार्ड के लिए कोई प्लान बनाया नहीं गया है। They are being victimized on the base of gender, उनको जेंडर के बेस पे क्या किया जाता है, उनको विक्टिमाइज किया जाता है, विक्टिमाइज मीन उनको यानी निशाना बनाया जाता है, उनको शिकार बनाया जाता है, ठीक है, विक्टिमाइज किया जाता है उनको on the base of gender के हवाले से। More than 15 million female home based workers are currently working in Pakistan, but their salaries are so small that they hardly earn a square meal. यानी more than 15 million female home based, यानी घरों में काम करने वाले कितने, तकरीबन 15 मिलियन मीन 1 करोड़ 15 लाख खवातीन जो है वो क्या करते हैं, घरों में होम बेस्ड वर्कर है, काम करते हैं, एंड दे आर करंटली वर्किंग इन पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बट देयर सैलरीज आर सो स्मॉल दैट दे हार्डली अर्न स्क्वायर मील, यानी उनकी सैलरी इतनी कम है कि वो क्या कर सकते हैं, बमुश्किल स्क्वायर मील वो कमा सकते हैं। स्क्वायर मील टू टाइम फूड, 2 वक्त की रोटी वो मुश्किल क्या कर सकते हैं, यानी 1 करोड़ 15 लाख खवातीन जो होम बेस्ड वर्कर है पाकिस्तान में, दे क्या करते हैं, दे only get hardly earn a square meal, 2 वक्त की रोटी मुश्किल कमा सकते हैं वो। As a result they have to live from hand to mouth, यानी इसके नतीजे में वो क्या करना पड़ते हैं, they have to live hand to mouth mean very hardly, hand to mouth mean hardly, ठीक है, वेरी हार्डली, बहुत ज्यादा मुश्किल से वो क्या करते हैं, वेरी हार्डली मीन बड़ी मुश्किल से वो जिंदगी गुजारते हैं, वेरी यानी पैथेटिक लाइफ गुजारते हैं, ठीक है। जब उनको यानी 2 वक्त की रोटी पर मुश्किल कमाते हैं, इट मींस दे आर लिविंग वेरी हैंड टू माउथ मीन वेरी हार्ड, बहुत ही मुश्किल जिंदगी वो क्या करते हैं, दे स्पेंड वेरी दे लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, वो हैंड टू माउथ यानी बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजारते हैं। All these sufferings are because of the inequality in society, especially in case of women folk. यानी ये सारे inequalities जो है, ये सारे factors जो है, ये सारे sufferings जो है, ये सारे जो उनकी तकालीफ और मुसीबतें जो है, are because of the inequality in society, society में inequality की वजह से, society में यानी गैर मसावात की वजह से, especially in case of women folk, खास करके खवातीन के हवाले से, खास करके women folk के हवाले से जो inequality है उसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। Women are also maltreated in case of inheritance. As I told you that they are also maltreated in case of inheritance. Inheritance के हवाले से, विरासत के हवाले से उनको क्या किया जाता है, maltreat किया जाता है, अच्छा सलूक नहीं किया जाता, बुरा सलूक किया जाता है। maltreat से कहा जाता है, बुरे सलूक को कहा जाता है, maltreatment, बुरा सलूक, उनके साथ क्या किया जाता है, बुरा सलूक किया जाता है, इनहेरिटेंस के हवाले से, विरासत के हवाले से। और कहते हैं कि they are not given their proper share in the property left by their parents, जो प्रॉपर्टी उनके पेरेंट्स छोड़ जाते हैं, जो प्रॉपर्टी उनके आबाओ अजदाद छोड़ जाते हैं, उनको उनका प्रॉपर शेयर भी नहीं दिया जाता, उनका हिस्सा भी उनको नहीं दिया जाता, उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता। मैंने आपको बताया भी था, जब कोई खातून अपने भाइयों से, अपने यानी चाचा से अपने विरासत में जो अपना हिस्सा मांगती है, तो पूरी ज़िंदगी के लिए उसे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं। और आप कहते हैं this injustice is a crystal clear sign of gender inequality in our country along with some other countries. ये जो inequality जो है, जो inheritance में जो ये उनके साथ जो mal treatment की जाती है, ये क्या है, that is crystal clear of gender equality, that is crystal clear sign of gender inequality. ये क्या है, gender inequality का crystal clear निशान है। crystal clear mean वाज़ेह तौर पर, crystal clear से कहा जाता है, crystal clear mean
क्रिस्टल क्लियर मीन वाज़ेह निशानी है। ये क्या है? ये वाज़ेह है, क्लियर है। ये क्या है? ये क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। उनके साइन है ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन आवर कंट्री अलॉन्ग विद सम अदर कंट्रीज, दूसरे ममालिक में भी। जेंडर इनइक्वालिटी यानी जेंडर इनइक्वालिटी ऑन द बेस ऑफ जेंडर इज इन एनी फॉर्म इज डिट्रीमेंटल टू सोसाइटी। चाहे वो एजुकेशनल हवाले से हो, चाहे वो हेल्थ के इशू से हो, चाहे वो मिजरेबल लाइफ गुजारते हो, चाहे वो इनहेरिटेंस के हवाले से हो, चाहे इट इज ऑल अबाउट इफ इट इज ऑल अबाउट द पेड लेस वेजेस, इट इज ऑल अबाउट इफ दे आर सेल्फ इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल नीड के हवाले से हो, इफ दे आर मलन्यूट्रिशन के हवाले से हो, ये किसी भी हवाले से हो, दैट इज डिट्रीमेंटल सोसाइटी। वो क्या है? सोसाइटी के लिए डिट्रीमेंटल है, खतरनाक है, वो डेंजरस है सोसाइटी के लिए, चाहे वो जिस सूरत में हो। द पेस ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट स्टॉप। क्या होती है इससे? सोसाइटी की यानी मुल्क की जो पेस होती है, जो रफ्तार होती है, डेवलपमेंट की पेस होती है, डेवलपमेंट की जो पेस होती है वो क्या होती है? पेस मीन रफ्तार को कहा जाता है। उसकी जो स्पीड जो है वो क्या होती है? वो स्टॉप हो जाती है। वो प्रोग्रेस जो है वो डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है। द रॉन्ग वन फील फ्रस्ट्रेशन, जिसके साथ यानी गलत हुआ होता है, जिस बंदे के साथ गलत हुआ होता है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, मायूसी का शिकार हो जाता है। और क्या होता है? They fall a victim to inferiority complex। वो inferiority complex का शिकार होते हैं, वो खुद को कमतरी, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। inferiority complex से कहते हैं inferiority complex mean एक superiority complex होते हैं, एक inferiority complex होते हैं। inferiority complex mean एहसास कमतरी। वो क्या होते हैं? एहसास कमतरी का शिकार होता है। वो खुद को कमतर समझने लगते हैं, खुद को लेस समझने लगते हैं, खुद को लो समझने लगते हैं एज कंपेयर टू अदर जेंडर। Their latent potentialities cease to function। उनके latent potentialities जो है, latent किसे कहा जाता है? latent mean existing potentialities। latent किसे कहा जाता है? latent mean existing। उनके अंदर जो potentialities जो होते हैं, उनके अंदर जो पावर होती है, उनके अंदर जो सलाहियतें होती है, ठीक है, इनेबिलिटीज जो होती है, वो क्या होते हैं? उनके अंदर जो एनर्जी जो होती है, पोटेंशियलिटी मीन एनर्जी को कहा जाता है, एबिलिटीज को कहा जाता है, एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियलिटीज। उनके अंदर एनर्जी जो है वो क्या होती है? सीज टू वर्क। वो क्या होती है? काम करना। सीज टू फंक्शन मीन फंक्शन करना छोड़ देता है, खत्म कर देता है। स्टॉप टू फंक्शन, वो क्या होता है? स्टॉप कर देता है। दे लीड डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड लाइफ। वो क्या करते हैं? मायूस और यानी डिजेक्टेड लाइफ, गमगीन लाइफ गुजारते हैं। वो डिप्रेस्ड और डिजेक्टेड लाइफ क्या करते हैं? वो गुजारते हैं। दे थिंक दैट देयर वेरी एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड इज गुड फॉर नथिंग इन फ्यूटाइल। वो ये सोचने लगते हैं कि उनकी एग्जिस्टेंस जो है, उनकी वजूद जो है इस दुनिया में क्या है? वो किसी काम का नहीं है, वो बेकार है, उनकी वजूद बेकार है। उनकी यानी गुड फॉर नथिंग मीन वो किसी काम का नहीं है, वो बेकार है। फ्यूटाइल मीन बेकार कहा जाता है। दे थिंक दैट दे एक्ट एज दे आर ड्रम ड्रिवन कैटल। वो किस तरह यानी वो एक्ट करते हैं? ड्रम ड्रिवन कैटल मीन ड्रम ड्रिवन कैटल। वो एक बहरे मवेशियों की तरह, ठीक है, बहरे मवेशियों की तरह क्या करते हैं? बहरे मवेशियों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। ड्रम ड्रिवन कैटल मीन वो उन मवेशियों की तरह, वो क्या है? डंप ड्रिवन कैटल। वो क्या है? वो डंप ड्रिवन कैटल की तरह, वो क्या है? वो अपने यहाँ जिंदगी, डंप ड्रिवन कैटल, उन मवेशियों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। वो जब उनको एहसास होता है कि देयर वेरी एग्जिस्टेंस इज गुड फॉर नथिंग एंड फ्यूटाइल, दैट इज व्हाई दे लिव लाइक अ डंप ड्रिवन कैटल। ठीक है, वो ड्रिवन कैटल की तरह क्या करते हैं? वो एक्ट करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ए नेशन कैन नॉट मेक प्रोग्रेस। ऐसे हालात में, ऐसे नामुसाइद हालात में यानी कोई भी नेशन क्या कर सकती है? तरक्की नहीं कर सकती। दे कैन नॉट मेक प्रोग्रेस यानी अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालात में यानी कोई भी मुआशरा, कोई भी कंट्री, कोई भी इदारा जो है वो क्या कर सकती? तरक्की नहीं कर सकती। And it cannot keep its pace with ever the advancing nation of the globe. Yani as compared to if these inequalities, if these inequalities are there in a country,
So this country cannot compare its space with the developing country, with the developing countries of the world, developing countries of the globe. दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज के साथ अपना यानी मवाजना नहीं कर सकती। आज जिस मुल्क में ये इनहेरिटेंस का, ये यानी लेस वेजेस का, ये इन सेल्फ इंडिपेंडेंस का, फाइनेंशियल नीड का और उनके मल न्यूट्रिशन के इस तरह के एजुकेशनल और वो हेल्थ फैसिलिटीज़ के जो इनइक्वालिटीज़ होंगे, जेंडर इनइक्वालिटीज़ होंगे, वो मुल्क जो है वो मुआशरा जो है दूसरे मुआशरे के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकती। This state of affair is quite grave. ये जो मामलात जो है क्या है, quite grave है, ये इंतहाई संजीदा मामलात है, ये क्या है, इंतहाई सीरियस मामलात है, and worthy of consideration और काबिल गौर है। worthy of consideration mean काबिल गौर है, इन पे सोचना चाहिए। consideration से कहा जाता है worthy of consideration mean काबिल गौर, ठीक है, ये क्या है, काबिल गौर है। ये बातें जो है, ये मामलात जो है, स्टेट अफेयर जो है, दे आर वर्दी ए कंसिडरेशन, ठीक है, इन पे सोचने की ज़रूरत है। एज इट एडवर्सली अफेक्ट अवर सोसाइटी, क्योंकि ये हमारे मुआशरे को क्या करते हैं, एडवर्स इफेक्ट होता है, इनका नेगेटिव इफेक्ट होता है। एडवर्स इफेक्ट मीन नेगेटिव इफेक्ट को कहा जाता है। एडवर्स इफेक्ट मीन नेगेटिव इफेक्ट को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे मुआशरे पर इनके क्या होते हैं, बुरे असरात होते हैं। So in any form it is detrimental. You know, as we are talking about gender inequality is detrimental to society. Yes, in any form यानी it is detrimental to society. ये क्या है, मुल्क के लिए, सोसाइटी के लिए क्या है, detrimental है, dangerous है। Dear students, this was all about gender inequality is detrimental to society. Let me revise the essay for you. Summarize the essay for you. As I told you that gender inequality is detrimental to society is an essay in your course that is all about miserable life of women in Pakistan. ठीक है, इनकी जो miserable life जो है, इनकी जो खौफनाक जो हैरान यानी ऐसी ज़िंदगी जिसपे यानी अफसोसनाक ज़िंदगी जो है, जो बुरी ज़िंदगी जो है पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से। नॉट इनफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन, पाकिस्तान में क्या है, उनके लिए एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके क्या है, नॉट इनफ एजुकेशन यानी मुकम्मल एज़ कम्पेयर टू मैन, ठीक है, ख़वातीन के इन मर्दों के हवाले से उनकी तालीम की भी क्या फैसिलिटीज़ बहुत कम है। नॉट सच हेल्थ कंडीशन फॉर वुमेन, पाकिस्तान में हेल्थ कंडीशन क्या है उनके लिए भी, वो भी ख़तरनाक है। एज आई टोल्ड यू दैट the worst situation is observed during maternity period। जिस तरह maternity period में जिस बुरे हालात का हम शिकार होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ख़वातीन जो है यानी पाकिस्तान में नॉर्मली क्या है 30/1000 जो है maternal mortality rate है, maternal and child mortality, infant mortality rate है, और in rural areas it is double, mean 60/1000 यानी हर 1000 में से 60 बंदे क्या होते हैं, मोर्टेलिटी का शिकार हो जाते हैं। So again this malnutrition is responsible for poor health in women। malnutrition का मसला है, malnutrition के हवाले से gender inequality है। पाकिस्तानी women are not self independent, self reliant for financial need। वो अपने financial need के लिए भी क्या है, they are not self reliant, they are not self independent, they are paid less wages as compared to men। उनको यानी less wages दिया जाता है, उनकी सैलरी भी कम होती है मर्दों के हवाले से, and they are maltreated in case of inheritance। And it was the last point that they are maltreated in case of inheritance। जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया है, जो कुछ दीन उसको दे देता है, वो भी क्या किया जाता है, इसमें भी उनको इक्वल शेयर नहीं दिया जाता, इक्वल राइट उनको नहीं दिया जाता। Dear student, we finished this essay that is gender inequality is detrimental to society. I hope you understood whatever we read. So in the next class we will come up with another topic that is another important topic. So for now it is enough for today. Thank you so much.